Hello students, this is the fourth video of the second chapter. In the first three videos we have talked about, the principle of management, what is principle of management, the characteristics and the importance. In the next two videos, the second and third, I have talked about the principles that was framed by the Fayol. I have divided two parts and explained it, and I have asked you to go through the videos while using the notes. Today we are going to talk about the other person who have also used the principle of management but in other way, who also framed the principle of management but in other way. We can say the name is Taylor, F. W. Taylor. He is a scientist, and basically he believes there is a scientific method of creating the principles for the management. He believes the science plays very important role in deciding how the work should be done. He believes there is only one way of doing the work. Except you try trial and error method, there is only one way, which is the most appropriate method of doing the work and reduces the wastage and increase the efficiency. According to him, if we compare Fayol and Taylor, Fayol says that the principle of management is related to a top management, how the top management should behave, how the top management should present themselves as a leader, because the top management is more important for the successful of the organization, which is correct to the point. But Fayol also have the same. Fayol says in a different way. Fayol says top management only prepare the policies and the strategies because they know the environment, they can analyze the environment. But what is important is the execution. If you have prepared, for example, simple, अगर आपने बहुत अच्छी तरह एग्जाम के लिए तैयारी की है पर एग्जाम पेपर में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देन कुछ भी हो सकता है. जितनी आपने मेहनत की, जितनी आपने स्ट्रेटेजी, जितनी आपने पॉलिसीज बनाई थी, अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रेटेजी तैयार की, टाइम टेबल तैयार किया था, वो सब क्या हो गया, खराब हो गया. The same way, Taylor also thinks that the manpower, that the workers are more important. If you select the workers, if there is a coordination, if there is a cooperation between the management and workers act according to the management, then only there will be a full success for the organization. So what Taylor says, Taylor believes on scientific management. Now according to Taylor, scientific management means, now I've written down, it means knowing exactly what you want man, that is worker, to do and seeing that they do in it the best and the cheapest way. What the Taylor says? Taylor says that it means knowing exactly, you should know exactly what you want from your workers to do and to see that, supervise them, okay, and to supervise them that do in the best way and the cheapest way. Now doing the work in the best way means there should be only one method. Cheapest way, there should not be a reduction or wastage. Now how the wastage will not be increased, or how the wastage should be reduced? By employing the appropriate or right person for the right job. That we have known, that we have studied briefly in while I explain you about the staffing process, about the process that includes the planning, organizing, staffing, directing and control. Okay. Now it says further, means if you go to the scientific management, what will be the effect? The effect that conducting business activity according to standardized tools, standardized methods and trained personnel. Trained personnel means the workers. The workers should be trained, they should know what work they have to do, they should know exactly how to work, they should know what is expectations from the organization. And if you do it in this way, it will increase the output automatically, it will increase the output, it will improve the quality and it will reduce the wastage. So according to Taylor, scientific management is one of the best way. Scientific management using the principle based on scientific methods are the best way of conducting the organization's activities. Okay. Now Taylor's, just like the principle given by the Fayol, there were 14 principles given by the Fayol.
tailors only provide 4 principles and the techniques for doing the work of scientific management, which we will discuss in the later part of the next video. Now Taylor says there are 4 principles. First of the principle that Taylor says that science not a rule of thumb. What it says, science not a rule of thumb. It means science, on the basis of science, when you prepare your management, on the basis of science, when you frame or form a principle, it is more accurate because आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उसे एनालाइज करते हो, आप उसे ऑब्जर्व करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन जाके उसके ऊपर आप अप्रूव करते हो कि सही है या नहीं है. मींस वंस यू ट्राई द रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब का मतलब ट्रायल एंड एरर करना. ट्राई करो, अगर सही है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो फिर दूसरी तरह ट्राई कीजिए, फिर दूसरा ट्राई कीजिए, फिर दूसरा ट्राई कीजिए, जब तक एरर खत्म नहीं होता. इट मींस इट विल इंक्रीज द वेस्टेज, इट विल नॉट रिड्यूस द वेस्टेज. आपकी क्वालिटी डिक्रीज होगी, आपकी आउटपुट डिक्रीज होगा. अगर आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्या करते हो, किसी प्रिंसिपल्स को या किसी वर्किंग प्रोसेस को डिसाइड करते हो कि हाँ ये चीज पहले होनी चाहिए, देन ये चीज बाद में होनी चाहिए, देन ये चीज बाद में होनी चाहिए, एंड उसको असेंबल करोगे तो वो चीज कंप्लीट हो जाएगा. और वो सबसे बेस्ट जो है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे हम पहले सही कर सकते हैं, बाद में सही करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्लियर? सो दीज आर द थिंग दैट इज गोइंग टू बी सेंस. कार जब बनती है तो जब कार बनता है तो उसका एक प्रोसेस होता है. पहले आउटर बॉडी पूरी तैयार नहीं होती, थोड़ी देर बाद जब इंजन फिल होता है, देन उसके आउटर बाद में उसके सीट वगैरह लगती है ना. तो ये चीज प्रॉपर है कि फेस कैसे तैयार करना चाहिए आपको. ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू डिसाइड किया गया है. ओके, सो साइंटिफिक मेथड सेज कि व्हाई द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि देयर इज ऑलवेज वन वे ऑफ डूइंग द वर्क टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी. देयर इज ओनली वन वे, बिकॉज़ टेलर बिलीव इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज ओनली अ वन वे. एक ही तरीका है काम करने का, वो सबसे बेस्ट तरीका है, उससे बेस्ट तरीका कोई सा भी नहीं होगा. ओके, या उसके ऑल्टरनेटिव कुछ होंगे तो उससे नीचे ही होंगे. सबसे बेस्ट तरीका जो साइंटिफिक मेथड ढूंढ के देगा आपको. अगर उस तरीके से आप काम करते हो देन साइंटिफिक स्टडी एनालाइज कैसे करेंगे? साइंटिफिक स्टडी करोगे इस जॉब के रिलेटेड कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है. हर एक एलिमेंट को आप एनालाइज करोगे, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हाउ द वर्क शुड बी डन, एंड देन यू प्रिपेयर दैट work process. Okay, so says that science not a rule of thumb. It means there is only a one way of doing the work to maximize the efficiency, which can be done by scientific studies and analyzing each element of job and avoid the trial and error method. Because trial and error method कब अप्लाई करोगे आप? जब प्रोसेस चल रहा होगा, जब प्रोडक्शन चल रहा होगा, तब आप ट्राई कर रहे हो कि ये चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी. तो मींस आप प्रोडक्शन अगर नहीं हुआ, एरर आ गया, काम नहीं बना उस मेथड से, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, जो बना है वो सब वेस्ट हो गया. देन फिर आप कोई नया मेथड यूज करोगे. तो साइंटिफिक बोलता है कि आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो आपका वर्क है उसको साइंटिफिक बेसिस पे आप तैयार करो. वो पहले एक छोटी सी जगह पे एक्सपेरिमेंट होगा जहाँ ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, एंड देन व्हेन यू अप्लाई, क्योंकि वो प्रूव्ड है. जब उसे अप्लाई करोगे तो आप प्रोडक्शन आपका रुकेगा नहीं, आप उसे लॉन्ग टाइम तक, और उससे आपकी क्वालिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. आपका आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा. आपका वेस्टेज क्या होगा? रिड्यूस होगा. तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा. क्लियर? दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. नाउ द सेकंड principle that Taylor says that harmony not discord, and the third principle cooperation not individualism. Now understand, these both principles are synonyms to each other. We can say they are, if say harmony not discord, okay, the third one is cooperation not individualism. So cooperation not individualism is just an extended form of harmony not discord. हार्मनी का मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करो, कोऑपरेट करो एक दूसरे से, ठीक है. अलग अलग नहीं कि तू अपने साथ देखे मैं अपने साथ देख लूंगा. मींस टेलर क्या कहा जाता है? टेलर कहा जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर को साथ में मिलकर काम करना चाहिए. मतलब दे शुड बी अ वी नॉट आई. वी जो वर्ड है उसको वी वर्ड को यूज करो और आई को हटा दो. मतलब ऐसे नहीं मैनेजमेंट बोले कि हम है हमारे बिना आपका कुछ नहीं, और वर्कर बोले कि अगर हम बनाएंगे तो आप क्या कर लोगे, और दोनों सिर्फ अपने ईगो पे काम कर रहे हैं. दोनों ये सोच रहे हैं कि हमको एक दूसरे की दरकार नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर? सो दे शुड बी अ हार्मनी एंड दे शुड नॉट बी अ डिस्कॉर्ड. मींस अलग अलग नहीं होना चाहिए. तो इट सेज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट वर्कर. दे
मेंटल रिवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये ध्यान रखना, एग्जाम में मेंटल रिवॉल्यूशन के नाम से पूछा है, व्हिच प्रिंसिपल वी आर टॉकिंग अबाउट, इट टॉक्स अबाउट हार्मनी और डिस्कॉर्ड। सो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब आपके दिमागी तौर पे, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होना चाहिए, पूरा एक तरह से चेंज हो जाना चाहिए सब कुछ। जो आपकी सोच है कि वर्कर्स अगर ये सोचते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट क्या कर लेगा, और मैनेजमेंट सोचता है कि हमारे बिना वर्कर्स क्या कर लेंगे, ठीक, हम पे नहीं करेंगे उनको, तो दोनों अगर अपने अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे या बोलेंगे हमारे बिना कुछ भी नहीं है, दोनों सोचेंगे हम हैं बस, हमारे अलावा कोई नहीं है, तो किसी को फायदा नहीं होगा, ना तो वर्कर्स को होगा ना ही मैनेजमेंट को होगा, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। सो क्या होना चाहिए, दोनों के दिमाग में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए कि दोनों की जरूरत है। वर्कर्स हैं तभी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है तभी वर्कर्स हैं। वर्कर्स अच्छा काम करेंगे तो फायदा किसको पहुंचेगा, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न पेमेंट किसको करेगा, वर्कर्स को। क्लियर? सो दीज आर द थिंग, और वहीं पे मैनेजमेंट वर्कर्स की सुनेगा तो इन रिटर्न वर्कर्स उनके लिए काम करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करो। मेंटल रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी ईगोस को साइड में करें, और दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कई बार देखने को मिलता है वर्कर्स स्ट्राइक पर चल जाते हैं, लॉकआउट कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमारा पैसा बढ़ा दो, हमारा वो कर दीजिए, तो वो चीज गलत है। फिर यहाँ पे क्यों ऐसा करने का मतलब क्या है, अगर कोई बोलता है कि हम स्ट्राइक कर देंगे, हम लॉकडाउन कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो कंपनी कहाँ से कमाएगी, प्रोडक्शन होगा नहीं। क्लियर? तो ये चीज गलत है, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, अपना इंपॉर्टेंस देख रहे हैं और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे। वहीं अगर मैनेजमेंट अच्छा पैसा कमा रहा है और वर्कर्स की जो डिमांड है, मतलब मान लीजिए अगर वो बोलते हैं कि हमारी सैलरी या वेजेस इंक्रीज करें, वो नहीं करते तो मैनेजमेंट गलत है, क्योंकि वर्कर्स जब काम नहीं करें तो मैनेजमेंट क्या करेगा। आगे बात समझे? तो दोनों साइड बाय साइड पैरेलल है, दोनों को साथ में चलना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, देयर शुड बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। क्लियर एवरीवन? ओके, मूविंग टू थर्ड प्रिंसिपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, that is cooperation not individualism is an extension of the above one, harmony not discord का extension है ये, और कुछ नहीं है। मींस harmony not discord में जो चीजें थोड़ी बहुत बच गई उसको अपन ने क्या बोला, अपन ने cooperation and individualism, harmony not discord में ये बोल रहे हैं mental revolution के लिए क्या बोलता है कि सब एक साथ मिलकर काम करें, अलग अलग काम नहीं करें। तो cooperation and individualism भी क्या कह रहा है, सब मिलकर काम करें, कोऑपरेट करें, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करे, वर्कर्स मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें, टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑपरेट करें, मिडिल लेवल फ्लोर लेवल के साथ कोऑपरेट करें, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। कोई अकेला नहीं करे कि भाई मैं कर लूंगा, मेरे को किसी की दरकार नहीं है। ऐसा करोगे तो नुकसान है। इंडिविजुअलिज्म जब आप लेकर आते हो कि मैं सब कर लूंगा, मुझे किसी की दरकार नहीं है, मेरे पे सब डिपेंड करते हैं, ये जो सोच है ये गलत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए काफी है। मींस अगर आप इसको कनेक्ट करो तो आपको एक प्रिंसिपल दिखेगा फेयोल के अंदर, और फेयोल में क्या प्रिंसिपल दिख रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट का जस्ट वायलेशन होगा सीधा, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की दरकार नहीं है, मैं कर लूंगा। तो ये इंडिविजुअल वो अपने आई के साथ चल रहा है, वो वी के साथ नहीं चल रहा। क्लियर है? सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल सेज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अबव वन। अबव वन किसके बारे में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। दैट एक्सटेंशन ऑफ अबव वन, कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए किसके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, दैट इज वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। कंपटीशन को किससे रिप्लेस कर दो, कोऑपरेशन से। एक दूसरे से कंपीट मत करो, लेबर वर्कर से, लेबर जो मैनेजमेंट से कंपीट कर रहा है, मैनेजमेंट लेबर से कंपीट कर रहा है, हर एक दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे से कंपीट कर रहा है, नहीं। कंपीट जो होता है, जो कंपटीशन होता है, वो हमेशा हेल्दी मैनर में होना चाहिए, रिवेंज मैनर में नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा किया, ठीक है मैं भी ऐसा कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं। सब अगर मिलके काम करेंगे, हेल्दी मैनर में काम करेंगे, अगर कोई अच्छा कर रहा है दूसरा भी अच्छा करने की कोशिश करेगा तो ज्यादा बेटर है। आगे समझ में, उस एक आगे बढ़ रहा है, दूसरा उसके साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ना कि दूसरे को खींच के फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म जैसी भावना नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए। अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो हार्मनी और डिस्कॉर्ड या कोऑपरेशन
ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई दीवार या कोई ब्रिज नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप उनसे बात करो फिर वो जाके मैनेजमेंट से बात करें, नहीं, ओपन कम्युनिकेशन, डायरेक्टली मैनेजमेंट और वर्कर्स फेस टू फेस बात कर सके। जब ऐसा होगा तो फिर उनको वर्कर्स को प्रॉब्लम होगी तो मैनेजमेंट को कह सकते हैं, और मैनेजमेंट अपनी प्रॉब्लम को समझा सकता है, उनको समझा सकता है कि अभी हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, या फिर हम करेंगे कितने दिनों में करेंगे, जो भी है। तो दोनों अगर फेस टू फेस इंटरेक्ट करके बात करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी है। जैसे ए ने बी को बोला, बी सी को बोलेगा, जबकि ए डायरेक्ट सी को बोलते ज्यादा अच्छा है ना। अब बी क्या कर सकता है, बीच में मिर्ची मिला सकता है, ठीक है, मिलावट कर देगा बातों के अंदर, और फिर वो सी को भड़का देगा, बाद में सी कुछ बोलेगा तो बी ए को भड़का देगा, तो बी अपना फायदा कर गया और ए और सी लड़ते रहेंगे जबरदस्ती। आगे बात समझ में। सो ओपन कम्युनिकेशन को ज्यादा बेटर है, दोनों खुल के बात कर लेंगे, दोनों खुल के बात करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर। सेकंड और क्या कर सकते हैं हम, साइड बाय साइड चलना है, मींस अगर वर्कर जैसे काम करते तो मैनेजमेंट को साइड बाय साइड काम करना जरूरी है, पैरेलल है ना, तभी तो वर्कर्स और मैनेजमेंट एक साथ काम कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे। नहीं तो मैनेजमेंट बोलते हैं तुम्हें काम करना है तुम कर लो, वर्कर्स बोले ठीक है कर लेंगे, फिर तुम भी देख लो, हमारे हिसाब से काम कर लेंगे, वो अपने हिसाब से काम करे, मैनेजमेंट की बॉस अचीव होंगे नहीं कभी। तो साइड बाय साइड चलना बहुत जरूरी है। जैसे वर्कर्स काम कर रहे हैं उसी साइड से मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के लिए क्या बनने चाहिए, आइडियल बनने चाहिए कि हाँ ये ऐसा काम करना, मुझे भी साथ में ऐसा काम करना चाहिए, तभी दोनों साथ में चल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कम काम लेके सारा काम किसको डाल रहा है, वर्कर्स के ऊपर डाल रहा है, या ऐसा नहीं कि वर्कर्स कम काम लेके सारा टेंशन किसको दे रहे हैं, मैनेजमेंट को दे रहे हैं, नहीं। दोनों अगर इक्वली डिवाइड कर लेंगे अपने काम को तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा बेटर हो जाएगा, काम ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। अभी डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन किसका है, फर्स्ट प्रिंसिपल किसका पढ़ सकते हो, अगर पढ़ा है आप लोगों ने, गो थ्रू किया है, किसका है, फेयोल का फर्स्ट जो प्रिंसिपल हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ प्रिंसिपल गिवन बाय द टेलर, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है कि सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसके बेसिस पे, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जितना एफिशिएंट है, जितना अच्छा काम कर रहा है, जितना फायदा ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा रहा है, उसी तरह से उसको डेवलपमेंट भी मिलना चाहिए, फाइनेंशियल नीड भी पूरी होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, उसको सेफ्टी प्रोटेक्शंस मिलने चाहिए, अदर फैसिलिटीज मिलने चाहिए, तो उससे क्या होगा, और मोटिवेट होगा और अच्छा काम होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी कैसे करेंगे हम, अभी एफिशिएंसी किसकी इंप्रूव करनी है, एम्प्लॉय की इंप्रूव करनी है, तो एम्प्लॉय की इंप्रूव करने से पहले हमें देखना पड़ेगा किस एम्प्लॉय को आप काम पे रख रहे हो। मतलब जो स्टाफिंग हो रही है तो स्टाफिंग बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल देखकर उस पे जो काम सबसे बेस्ट होता है वो काम उसको अगर दोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। अब हिंदी के टीचर को आप बोलो अकाउंट्स पढ़ा दो, या अकाउंट्स के टीचर को बोलो हिंदी पढ़ा दो, दोनों ही क्या है, अलग है, दोनों उस एरिया में कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टाफिंग करते तो आपको ये पता होना चाहिए, द पर्सन टू हुम यू अपॉइंट, यू शुड नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, व्हाट इज हिज मेंटल कैपेसिटी, ओके, व्हाट आर हिज और हर स्किल्स, और फिर उसको क्या करें, फिनिशिंग करने के लिए, उसको शाइनिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जब ऐसे काम दोगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया वो काम दोगे, उनके जो सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखते हुए कि हाँ इसको ये काम ज़्यादा पसंद है, इससे ज़्यादा ये काम ज़्यादा बेटर कर सकता है, अगर उस बेसिस पे काम दोगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा। नहीं तो अगर आपने किसी और का काम किसी और को दे दिया तो फिर आपने हिंदी में कहावतें पढ़ी है, उसको याद कर लो, पता चल जाए, ठीक है, जिसका काम
उसी को बस मुकाबला याद कर लो, समझ में आ जाएगा। मीन्स द पर्सन यू आप इसका अपॉइंट कर रहे हो, सब पता होना चाहिए कि आपको क्या फैसिलिटी या कौन सा वर्क उसको देना है। डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन भी ये कहता है कि जिसके लिए जो बेस्ट सूटेड होगा काम, वो काम दे दीजिए। अगर वो काम वो रेगुलर करता रहेगा, उसमें स्पेशलाइज करेगा, अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। क्लियर? तो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। टेलर बिलीव इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? साइंटिफिक रूल, जो रूल नॉट अ थंब। ठीक है, तो बोला साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के लिए बोला कि आप कोई भी काम साइंस के बेसिस पे डिसाइड करिए, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करिए, ट्रायल एंड एरर मेथड को बंद कीजिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट से कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेकंड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट सेज development of each and every person according to efficiency and prosperity. These are the 4 points that we have completed today of Taylor's regarding scientific management. In the next topic, in the next video, I will be discussing about the techniques of scientific management, which will be probably the last video of this chapter. This video is going to be at by the 5th or 6th by last, if it takes something more points or more lectures. There will be total in 5 or 6 lectures which will be covered for this chapter. Notes has been provided to you, as you all know. Worksheet has also been provided to you. So go to the notes and worksheet. If there is any problem, then you know how to communicate with me. Okay? Thank you, students.